Hello kids doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. Okay, what we have today? Yes, today is our lecture number 6 of biological classification. So, let's start our continued topics that we were dealing in lecture 5. So, without wasting a single minute, let's just start. And the topic of the day is protozoan. The first topic of the day is protozoans. Okay, we have seen what we have seen under kingdom Protista. First, chrysophytes. First group, that is chrysophytes, then dinoflagellates, then euglenoids, then slime molds. Right? Chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and next one is the last one is protozoan. So with this we will complete the kingdom Protista. So now we have to deal this protozoan group now. Okay, yes. This all are unicellular or multicellular? I would like to ask one question. See, kingdom Monera, Protista, fungi, plantae and animalia. These are the 5 kingdoms that we have to deal, right? Okay, there are separate chapters, that is something different topic. That see, these kingdom plantae and kingdom animalia, they are different chapters, but still we have to deal these 5 kingdoms, right? Yeah, that was my point. Now Monera, it is unicellular or multicellular? Yes, it is unicellular and it is prokaryotic, right? It is the only prokaryotic kingdom, and that too unicellular. These all are eukaryotic kingdoms. These all are eukaryotic kingdoms, right? These all are eukaryotic kingdom. Now, as these all are eukaryotic kingdom, but the major difference between Protista and the other 3 group is what? Yes, the thing is Protista is unicellular. Protista is unicellular, and the other 3 group, that is fungi, plantae and animalia, are multicellular. So what we have seen from this is, see, Protista is unicellular. Protista is unicellular, eukaryotic. Unicellular hai. And as the complex evolution takes place, the next group emerged as multicellular eukaryotes. That is the reason. First they were unicellular prokaryotes. Then the next group, that is next kingdom Protista, came up like unicellular eukaryotes. Okay, so what Protista group is? It is unicellular eukaryotes. Yes. Now kingdom Protista is unicellular eukaryotes that we have seen. The group that we are dealing here is protozoan. Protozoan are said to be close relative of animals. Protozoans को close relative of animals कहा जाता है. Why? Because in animals we know that cell wall is absent, right? Cell wall absent है, that is something that we know about animals. So in protozoans too, cell wall हमें दिखेगी नहीं, cell wall absent होगी. That is the reason we are saying it is close relative of animal. And the other reason is it is heterotrophic. That is, it do not prepare its own food. It depends on other organism. That is the reason its nutrition is heterotrophic. As in animals also the nutrition is heterotrophic. Now and cell wall is absent, as in animals also cell wall absent. That is the reason, because of these 2 reasons, protozoan are said to be close relative of animals. Okay, now habitat: free living, aquatic, moist, soil and parasite in or on the host. ये है इसका habitat. Nutrition, as we have said, that is it is heterotrophic. Okay, do you people have any डाउट? देखिए, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक हो गए एंड क्लोज रिलेटिव ऑफ एनिमल, बिकॉज सेल वॉल तो होगी एब्सेंट, एंड हेटेरोट्रॉफिक होगा न्यूट्रिशन. हैबिटेट फ्री लिविंग एक्वेटिक, मॉइस्ट सॉइल पे भी होंगे, पैरासाइट होंगे इन और ऑन द होस्ट, होस्ट के ऊपर और होस्ट के अंदर भी वो लोग पैरासाइट के जैसा पाए जाते हैं. न्यूट्रिशन, एज वी हैव सेड, हेटेरोट्रॉफिक, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. वी आर क्लासिफाइंग द protozoans, right, on the basis of locomotory structures. On the basis of what locomotory structure do they hold, we are classifying the protozoans. Okay, first is amoeboid protozoan, second is ciliated protozoan, third is flagellated protozoan, and the fourth one is sporozoan. So these are the classification. ये सब प्रोटोजोन की क्लासिफिकेशन है. किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई करेंगे, राइट? एमीबॉइड प्रोटोजोन, ciliated protozoan, flagellated protozoan and sporozoan. Please
note it in a rough note. Now let's go to the each classification, right? Amoeboid protozoan, as the name depicts, first habitat is fresh water में मिलेंगे हमें amoeboid protozoans, and marine water में भी मिलेंगे, moist soil में भी मिलेंगे. बट जो marine water में आपको मिलेंगे, आपको उसमें सिलिका मिलेगा. सिलिका प्रेजेंट इन marine amoeboid protozoans. आपको सिलिका मिलेगा marine amoeboid protozoans में, right? Where we have seen silica in, yes, in diatoms we have seen cell wall was made up of cellulose and silica, right? That is the reason cell wall was indestructible and diatomaceous earth formation took place. So we have seen silica there, and the next where we can see silica is here in amoeboid protozoan. In marine amoeboid protozoans silica present होगा, and the habitat of amoeboid protozoans is fresh water में मिलेंगे, marine में मिलेंगे, and marine में आपको silica present होगा and moist soil में. Then what is the locomotor structure? We have classified this protozoans on the basis of locomotor structure. So now we have to figure out what are the locomotor structures that we have to see. Amoeboid protozoan, that is pseudopodia present that helps in locomotion. So pseudopodia is a locomotor structure of amoeboid protozoan, right? That helps in locomotion, movement and capture of prey. So what is the locomotor structure in amoeboid protozoan? That is pseudopodia, जो help करता है locomotion में, movement में and capture of prey में. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग. फ्री लिविंग के एग्जाम्पल्स है अमीबा एंड पैथोजेनिक. पैथोजेनिक पैरासाइट, यू नो, पैरासाइट इज डिफरेंट एंड पैथोजेनिक इज डिफरेंट. पैथोजेनिक इन द सेंस जो हार्म करेगा आपको. एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका. एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, you know, what disease do it cause and what are the side effects does a human, a person gets through Entamoeba histolytica, because it is pathogenic, means कोई ना कोई हार्म कर रहा है. क्या हार्म हो रहा है, what are the symptoms, that everything we are going to deal in human health and diseases. ठीक है, once again we will see here. See, amoeboid protozoans, that is habitat fresh water में होंगे, marine water में भी होंगे and moist soil. marine amoeboid protozoans में आपको मिलेगा सिलिका. सूडोपोडिया लोकोमोटर स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है लोकोमोशन, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ प्रे में. एग्जाम्पल्स अमीबा दैट इज फ्री लिविंग होगा, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका जो होगा पैथोजेनिक. ओके, इट इज पैथोजेनिक. नाउ द नेक्स्ट हियर इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. एज द नेम डिपिक्ट्स व्हाट विल बी द लोकोमोटर स्ट्रक्चर, दैट इज फ्लैजेला, राइट, एंड इट इज अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. फर्स्ट फ्लैजेला प्रेजेंट होगी, वेरी गुड. देन फ्री लिविंग होगा या फिर पैरासाइटिक होगा. कौन? Flagellated protozoans. Example is trypanosoma. Trypanosoma is called as sleeping sickness. ठीक है, what is trypanosoma means? एक sleeping sickness. It is a kind of disorder. देखिए, flagellated protozoans first आप लोग नोट करिए. The locomotor structure is flagella. That is flagella present होगा. They will be free living or parasitic. And examples trypanosoma, flagellated protozoans, ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस. आप लोग ऐसे हर चीज़ नोट करते जाओगे, सो फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, नाउ वी विल डील विद एनसीईआरटी वाला पार्ट. दिस इज प्रोटोजोन्स, राइट. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, राइट. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. प्लीज नोट दैट वेदर इट्स amoeboid, ciliated, flagellated and sporozoan, they all are heterotroph. That is the reason we have said protozoans as relatives of animal, right, and live as predators. या अगर heterotroph होंगे then of course they would predate और parasite के जैसा हो जाएंगे. They are believed to be primitive relatives of animals. क्यों? क्योंकि cell wall था absent, क्योंकि cell wall भी absent था इन लोग के पास, and they were heterotrophic. These two reasons की वजह से हम बोल रहे थे कि दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, क्योंकि ये दो भी चीज़ें, ये सेल वॉल तो था नहीं एंड दे वर एंड हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है, नाउ देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स. अमीबॉइड प्रोटोजोन, दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, यस, सी वाटर दैट इज मराइन और मॉइस्ट सॉइल. दे मूव एंड कैप्चर they prey by putting out pseudopodia. Pseudopodia, that is its locomotory structure, right, जो movement में, capture of prey में भी help कर चुका है. We have studied. And pseudopodia is also called as false feet. As in amoeba, it is a free living. Marine forms have silica shells on the surface. Silica के shells होंगे marine amoeboid protozoans में.
Some of them, such as Entamoeba, are parasite. It is a pathogenic parasite. Entamoeba sholaitica are parasite. Okay. Now, flagellated protozoans. The members of this group are either free living or parasitic. Yes, they have flagella. Of course, the parasitic form causes disease such as sleeping sickness. वो लोग क्या करेंगे? Disease form करेंगे sleeping sickness जिसका name है trypanosoma. ठीक है. Flagellated protozoans will cause a disorder that is trypanosoma sleeping sickness. They have flagella. They would be free living or parasitic. ठीक है. पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज दिस स्लीपिंग सिकनेस, नॉट फ्री लिविंग फॉर्म. आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए फ्री लिविंग फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपैनोसोमा बोल के इट विल गिव टू मेक द क्वेश्चन ट्रिकी. बट आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे इट इज पैरासाइटिक फॉर्म. ठीक है. नाउ ciliated protozoans, as the name depicts, cilia is the locomotory structure, right? Cilia present होगा. Cell actively, because of the presence of thousands of cilia. See, these all are cilia. These all are cilia. ठीक है. Because of the presence of thousands of cilia, जो ciliated protozoans की बॉडी होगी वो एक्टिवली मूव करेगी. देखिए, सेल एक्टिवली मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया. फूड इज मूव. अब यहाँ से सपोज यहाँ से फूड होगा, यहाँ से फूड होगा. सो विद द हेल्प ऑफ सीलिया यहाँ से फूड मूव होते 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 पूरा गलेट में चले जाएगा. गलेट इज माउथ लाइक, राइट? टू सीलिएटेड. देखिए, विद द हेल्प ऑफ सीलिया फूड इज मूव, दैट इज स्टीड होगा अंदर इनटू गलेट, माउथ लाइक. आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन में एक माउथ लाइक पार्ट होगा गलेट, जिसमें फूड होगा स्टीड विद द हेल्प ऑफ सीलिया. सीलिया की थ्रू, because of the presence of cilia, the food is steamed, that is moved into gullet, mouth like. ठीक है. cilia तो present हो गए locomotor structure से, and cell actively move भी होगा. cilia की cilia is the reason for the active movement. Then with the help of cilia food is moved, that is steamed into gullet, mouth like. Okay. Then example is paramecium. Paramecium is the example of ciliated protozoans. Okay, have you got this? Now the next thing is sporozoan. So sporozoan, this is the last thing in the protozoans. Okay, देखिए, sporozoan, they have no locomotory organs. What we have seen in first, what is the first? That is amoeboid. Amoeboid में we have seen pseudopodia, right? Pseudopodia. Then amoeboid में we have seen pseudopodia. Then the next was ciliated. Ciliated में we have seen cilia. And in flagellated, what we have seen in flagellated? We have seen flagella as locomotory structure. And anything left behind? Flagellated protozoans, ciliated protozoans, amoeboid protozoans, right? Okay, now the next group is sporozoans. But in sporozoan we are not able to find any locomotory structure, क्योंकि locomotory structure absent है, but they have no locomotory structure. Life cycle has spore like stage. Then why we are calling it a sporozoan? लाइफ साइकिल में होगा एक स्पोर लाइक स्टेज होगा. इसके पूरी लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज होगा जो इन्फेक्टिव स्टेज होगा. ठीक है. एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट, राइट? ये सबको पता होता है कि प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट. एंड इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइड. स्पोरोजॉइड एक स्पोर स्टेज है एंड वही इन्फेक्टिव स्टेज होता है मैन में. ठीक है. इन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, दैट इज इट इज अ प्लाज्मोडियम, राइट? द इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजॉइड, दैट इज स्पोर स्टेज. ठीक है. वाई वी आर कॉलिंग इट स्पोरोजोन? बिकॉज लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं, बट लाइफ साइकिल है स्पोर लाइक स्टेज, इन्फेक्टिव होगा वो. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. इन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द जो मलेरिया काउज करता है, द इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजॉइड. इन्फेक्टिव स्टेज होगा स्पोरोजॉइड, दैट टू स्पोर स्टेज. ठीक है. So with this we have completed. Now let's see NCERT. Ciliated protozoans. These are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia, right? They have a cavity, gullet, that opens to the outside. जो outside होगी जो open होगी outside of the cell surface, right? The coordinated movement of rows of cilia. Rows of cilia के through causes the water laden with food, जो पानी एंड खाने को स्टीड करेगा, मूव करेगा गलेट के अंदर. एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, राइट? वी हैव सीन द फिगर. स्पोरोजोन्स, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल. The most notorious is Plasmodium. It is a malarial parasite, yes or no? Which causes malaria. Malaria has a staggering effect on human population. Okay, with this we have completed the kingdom Protista. Now let's just start the kingdom fungi without wasting any time. Do practice question as many as you can, and I have even posted many questions on kingdom Protista till
I bring some videos, you people practice, and you can practice from short videos as well. ठीक है, देखिए kingdom fungi. What we have seen in kingdom protista? What we have seen in kingdom protista, please? It is kingdom protista was, हम देखे थे कि unicellular and eukaryotic. Okay, unicellular and eukaryotic. Then as the complex evolution takes place, it is forming multicellular eukaryotic. Then fungi क्या होगा? Multicellular eukaryotic. ठीक है. Then fungi, plant and animalia, they both, these three kingdoms are eukaryotic and that too multicellular. ठीक है. Well defined membrane bond organelle हो गए. Yes, multicellular and that too eukaryotic. Storage होगा glycogen. Cell wall, that is chitin plus polysaccharide. Chitin, mostly chitin chitin plus carbohydrate. Chitin plus carbohydrate. ठीक है. This is about cell wall. First, it is eukaryotic and multicellular. Well defined membrane bond organelle हो गए. It is eukaryotic and that multicellular, and storage होगा glycogen. सेल वॉल chitin मोस्टली, बट कार्बोहाइड्रेट भी हमें मिलेंगे. देखिए फंगाई हमें हर जगह मिलेगा, वेदर इट्स इन एयर, वेदर इट्स इन सॉइल, वॉट एवरीवेयर यू कैन फाइंड फंगाई. बट कैन यू सी इट? आप लोग बोलोगे नहीं, हमें तो ब्रेड जब खराब हो जाएगी हम देख पाएंगे फंगाई को, बट नॉर्मली वी डू नॉट फाइंड इन एयर, इन वाटर और एनीवेयर. सो आई हैव द आंसर फॉर योर क्वेश्चन. देखिए फंगाई हमें हर जगह मिलेगा, हर जगह. आपके हैंड पे होगा, आपके डेस्क पे होगा, एवरीवेयर यू कैन फाइंड फंगाई एवरीवेयर. बट उसका कौन सा स्टेज, कौन सा उसका कौन सा स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल आपको मिलेगा, दैट वी हैव टू सी. देखिए ये फंगाई के स्पोर्स है जो आपको हर जगह मिलेंगे. स्पोर्स आर आपको कहाँ, फंगाई इज कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स वो जो हर जगह होती है, सब उसके स्पोर्स हर जगह मिलेंगे. दीज आर स्पोर्स, राइट. अब ऐसे स्पोर्स होते हैं कि आपको ब्रेड पे ऐसे स्पोर्स मिलेंगे नहीं, आपको तो कुछ थ्रेडी स्ट्रक्चर मिलता है ब्रेड पे, जो फंगाई फॉर्म हो जाती है वो तो थ्रेडी कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर होता है. देन हाउ कम? देखिए स्पोर्स को अगर आप दोगे ह्यूमिड प्लस वार्म एनवायरनमेंट, ह्यूमिड एंड वार्म एनवायरनमेंट अगर आपने स्पोर को दे दिया, देन इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर, a filamentous structure. See, it will form a filamentous structure like this. It will form a filamentous structure like this. So this is what? This is hyphae. Okay, this is hyphae. Now एक filamentous structure फॉर्म हो गया है, that is hyphae. ये था स्पोर, आपने इसको warm and humid conditions दिया था, then आपको स्पोर ने filamentous hyphae बनाकर दे दिया. Then filamentous hyphae will further form group of hyphae. See, it will form a group of hyphae, this meshy group of hyphae like structure. This is mycelium. ये होगा mycelium, right. देखिए first spore, these are spores, humid and warm conditions में they will form a structure that is hyphae, filamentous hyphae. Hyphae then further form a complex that is group of hyphae called mycelium. So ऐसे आपको क्या दिखेगी कि स्पोर से जब उसको कंडीशंस, उसके फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते जाएंगे, जो हम ये सब आगे पढ़ने वाले हैं डीपली. सो व्हाट यू हैव टू सी इज स्पोर्स हैबिटेट. सी कॉस्मोपॉलिटन, फंगाई कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज अकर एवरीवेयर, सॉइल, एयर, वाटर, एवरीवेयर. स्पोर्स ऑफ फंगाई आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह आपको स्पोर्स मिलेंगे. एंड स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म हाइफे. देखिए स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर और कॉल्ड हाइफे. बट कब जर्मिनेट करेंगे? आप बोलोगे कि मेरे हैंड पे तो फंगाई होगा नहीं, क्यों? आपको वार्म एंड ह्यूमिड दो कंडीशंस होना, इट इज नेसेसरी. अगर आप ये दो कंडीशंस दो दोगी फॉर जर्मिनेशन, इट रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस, देन ओनली इट विल जर्मिनेट. ये आपको क्या कर देगा? स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म हाइफे. ओके, वेरी गुड. हैव यू पीपल understood this slide? देखिए फंगाई यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्युलर, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेले हो गए. स्टोरेज इज ग्लाइकोजन. सेल वॉल chitin प्लस कार्बोहाइड्रेट. habitat that is cosmopolitan, soil, air, water, everywhere. Spores of fungi are found everywhere. Spores मिलेंगे हमें. And if we give warm and humid condition, it will germinate to form hyphae, that is filamentous structure. Okay.
नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज हियर. फॉर एग्जांपल वी हैव, देखिए अब आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल कि व्हाई डू वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर. हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? व्हाई डू वी कीप इट? बिकॉज रेफ्रिजरेटर, व्हाट आर द कंडीशंस इन रेफ्रिजरेटर? क्या वहाँ पर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस आपको मिलेंगे? नहीं, वहाँ पर आपको कोल्ड कंडीशंस मिलेंगे एंड नॉन ह्यूमिड कंडीशंस मिलेंगे, राइट? बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड नॉन ह्यूमिड कंडीशंस क्या वहाँ पर स्पोर्स ऑफ फंगाई जर्मिनेट हो पाएंगे? नहीं, दे वुड नॉट जर्मिनेट एंड दे विल नॉट फॉर्म फिलामेंटस हाइफे. द फिलामेंटस हाइफे विल नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स माइसीलियम दैट ग्रुप ऑफ हाइफे. ऐसे क्या होगा कि हमारे पास फंगाई का ग्रोथ नहीं होगी. दैट इज इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर इट हैज़, एंड फूड क्या हो जाएगा, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाएगा. इट विल गेट प्रिजर्व. इट हैज़ cold and non-humid environment. Yes, so as spores does not germinate in refrigerator, as a result fungal infections could not proceed in refrigerator. Fungal infections क्या होगा, proceed नहीं हो पाएंगे refrigerators में, and that too food remain safe, and therefore food remains safe. So that is the reason we keep food in refrigerator. क्योंकि spores तो होंगे, क्योंकि cosmopolitan है, spores of fungi will present there also, but the refrigerator में we should have that necessary conditions, then only it will germinate to form a hyphae, that is filamentous structure. बट यहाँ पर आपको देखिए कोल्ड एंड नॉन ह्यूमिड एनवायरनमेंट में स्पोर्स तो जर्मिनेट होंगे नहीं, एंड फंगल इन्फेक्शन कुड नॉट प्रोसीड इन रेफ्रिजरेटर, देयरफॉर फूड रिमेन सेफ. ओके, नाउ एग्जांपल्स. प्लीज टेक अ रफ नोट and pen and write each example 3 times. See here, I am repeating it 3 times. Mushroom, it is a fungi, right? Toadstool is a poisonous fungi. Yeast आप सबको पता है, it is unicellular, right? देखिए आपको इतने सारे यहाँ पर मैं इन्हें फंगाई के एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट इस सारे एग्जाम्पल्स मल्टी सेल्यूलर फंगाई के. एक ईस्ट ही है जो यूनिसेल्यूलर होगा, बाकी के मोस्ट ऑफ द फंगाई आर मल्टी सेल्यूलर. ये हम आगे भी पढ़ेंगे. देखिए मशरूम फंगाई, टोडस्टूल इज पॉइजनस फंगाई, ईस्ट दैट इज शुगर फंगाई बोलेंगे हम इसको, एंड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट वी प्रिपेयर इथेनॉल एंड ब्रेड. यस, एंटीबायोटिक पेनिसिलियम. मस्टर्ड लीफ पर आपको क्या दिखेंगे, वाइट स्पॉट दिखेंगे आपको. ये वाइट स्पॉट क्यों आते हैं, क्योंकि पैरासाइटिक फंगाई दैट इज आल्ब्यूगो. रस्ट इन वीट में जो रस्ट होता है ड्यू टू पक्सीनिया. मशरूम इट इज़ अ फंगाई. टोडस्टूल पॉइजनस फंगाई है. ईस्ट इज शुगर फंगाई, एंड विद हेल्प ऑफ ईस्ट वी मेक इथेनॉल एंड ब्रेड. एंटीबायोटिक्स दैट इज पेनिसिलियम. मस्टर्ड लीफ में वाइट स्पॉट are due to parasitic fungi that is albugo. Then rust in wheat, Puccinia, right? Mushroom is fungi. The mushroom you eat is also fungi. Please note. Toadstool, that is poisonous fungi. Yeast, sugar fungi बोलेंगे, and used in preparation of ethanol and bread. Antibiotics, penicillium. Mustard leaf पे जो आपको white spot दिखेंगे, these are due to parasitic fungi albugo. Rust in wheat is due to Puccinia. ठीक है, प्लीज़ आप लोग एग्जाम्पल 3 टाइम नोट कर ले एंड आपको ईजी हो जाएगा हर चीज़. नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन स्ट्रक्चर. सेल डिटेल्स. देखिए यूकैरियोटिक है, यस, एंड यूकैरियोटिक होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको मिलेगा, यस मिलेगा. देन देखिए सेल वॉल, काइटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स. स्टोरेज होगा ग्लाइकोजन. हम ये दिस 3 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड दिस बिफोर, राइट? क्लोरोफिल यहाँ पर एब्सेंट होगा. आप लोग प्लीज़ नोट करें. वी आर सेइंग दैट फंगाई इज हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है. हेटेरोट्रॉफिक है मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट? इसीलिए तो लोग किसी पे डिपेंड हो रहे हैं. अगर उन लोग के पास क्लोरोफिल होता, दे कुड हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड, देन दे वुड हैव बीन autotrophic, but they don't have chlorophyll, they are not autotrophic. That is the reason they are heterotrophic, they are purely heterotrophic. सी क्लोरोफिल इसीलिए एब्सेंट है. आप लोग ऐसे कोरिलेट करके अच्छे से याद कर सकते हो. मोस्ट फंगाई इज मल्टी सेल्यूलर. आपको जितने भी फंगाई है सब मल्टी सेल्यूलर ही मिलेंगे, बट एक ईस्ट ऐसा फंगाई है जो सिर्फ यूनिसेल्यूलर है. बाकी के हर फंगाई इज मल्टी सेल्यूलर. देखिए यूकैरियोटिक है, आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा. सेल वॉल में काइटिन है एंड कार्बोहाइड्रेट्स. स्टोरेज देखिए ग्लाइकोजन. क्लोरोफिल यहाँ पर एब्सेंट होगा, राइट? मोस्ट फंगाई मल्टी सेल्यूलर एक्सेप्ट ईस्ट, दैट इज एक्सेप्ट ईस्ट. ईस्ट यूनिसेल्यूलर फंगाई है, बाकी के मोस्ट ऑफ द फंगाई दे आर मल्टी सेल्यूलर.
नाउ सी हियर, बट अब हम जानेंगे हाउ डज एक्चुअली द फंगाई ग्रो। अभी हमने देखा था कि स्पोर था, देखिए अभी हमने देखा इट स्पोर इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, आपको कौन सी कंडीशन के necessity थी, that is warm and humid condition. It was forming a filamentous structure, right? It was forming a filamentous structure like this. It was forming a filamentous structure. This is hyphae. Now hyphae was forming a structure called mycelium. Mycelium is actually what? Mycelium is group of hyphae, right? Mycelium is group of hyphae. Mycelium is group of hyphae. Then mycelium, what will it form? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि स्पोर इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इट विल फॉर्म अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दैट इज hyphae. Hyphae will form mycelium. Mycelium is group of hyphae. Now mycelium, what will it form? Mycelium will form, these are the see, this is the mycelium, right? Now it will develop some kind of this structures. These are the fruiting bodies on mycelium. These are the fruiting bodies on mycelium. It will develop fruiting bodies. So what will mycelium do? It will develop fruiting bodies. ठीक है, अब देखिए, so like this the complex structures get formed. देखिए स्पोर से वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में it is forming hyphae. They are forming mycelium, that is group of hyphae. Then mycelium, it is developing fruiting bodies. अब यहाँ पर देखिए how fungi actually grow. Spores germinate होंगे the presence of warm and humid conditions to form hyphae, right? Then hyphae form mycelium. What is mycelium? Network of hyphae होगा. देखिए network of आपको filamentous hyphae दिख रहा है, it is mycelium. Then mycelium will form fruiting body. देखिए fruiting body लोग ने डेवलप कर चुका है, that is aerial mycelium. ये aerial mycelium होगा जिसपे आपको स्पोर्स बेयर करेंगे, राइट? आप फेमिलियराइज हो जाएगी, जितना हम पढ़ेंगे ना फ्रूटिंग बॉडी को, यू विल गेट फेमिलियराइज. सो इट विल बेयर स्पोर्स एट द टिप्स. सो फ्रूटिंग बॉडी से एरियल माइसीलियम, ये भी एक तरह का माइसीलियम है बट ये एरियल माइसीलियम है एंड ये बेयर करेंगे स्पोर्स. सो देखिए हाउ डू फंगी एक्चुअली ग्रो. वी हैव सीन. नाउ लेट्स सी विद द डायग्राम. फर्स्ट spores germinate to form hyphae. Hyphae give mycelium, it is network of hyphae. Then mycelium give fruiting bodies, that is it is aerial mycelium, and fruiting bodies करेंगे spores bear at the tips. Now let's see the structures. देखिए this is spore, right? This is spore. Now spore on warm and humid condition, it is forming hyphae. It is filamentous structure. Can you see this filamentous structure? Yes, they are forming hyphae. Hyphae is forming this meshy, that is देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज नेटवर्क ऑफ हाइफे से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जो है माइसीलियम. ठीक है, नाउ माइसीलियम विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी. माइसीलियम क्या करेगा? ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर लेगा. ये है फ्रूटिंग बॉडी जिसमें दे विल बेयर स्पोर्स एट द टिप्स. देखिए यहाँ से भी हम मशरूम की लाइफ साइकिल आई हैव टेकन, बट सी आपको मैं क्या समझाना चाहती हूँ, आप लोग वो देखिए. देखिए ये है स्पोर्स, राइट? ये स्पोर्स है, दे आर फॉर्मिंग हाइफे. नाउ हाइफे इज फॉर्मिंग माइसीलियम. माइसीलियम के ऊपर आपको दिख रहा है कि फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो रही है, राइट? फ्रूटिंग बॉडी बेयरिंग स्पोर, देन इसका स्पोर रिलीज हो रहा है, फिर हाइफे, देन फिर माइसीलियम, देन फ्रूटिंग बॉडी, देन स्पोर. ठीक है, सो दिस इज दैट इज हाउ द फंगाई ग्रोस. ठीक है, क्या आप लोगों को समझ आ चुका है? नाउ वी हैव हियर कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी होगी, जो हम आगे आपको ये वर्ड्स यूज होंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है. टू टाइप्स ऑफ हाइफे है हमारे पास, दैट इज एसेप्टेट हाइफे एंड सेप्टेट हाइफे. वी हैव सीन व्हाट इज हाइफे, राइट? फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट स्पोर इज फॉर्मिंग इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस. दिस इज एसेप्टेट. देखिए ये है हमारा एसेप्टेट हाइफे एंड ये है हमारा सेप्टेट हाइफे. ये है हमारा सेप्टेट हाइफे. व्हाट आर द डिफरेंस अमॉन्ग दीज टू? देखिए ये क्या है? कंटिन्यूस ट्यूब है filled with cytoplasm and nucleus. You can see it from figure. देखिए ये कंटिन्यूस ट्यूब है filled with cytoplasm and nucleus. एंड यहाँ पर आपको क्या सेप्टा मिल रहा है? नहीं, सेप्टा एब्सेंट है यहाँ पर. दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज एसेप्टेट. एसेप्टेट को हम क्या बोलेंगे? सिनोसाइटिक हाइफे भी बोलेंगे. दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. सो एसेप्टेड हाइफे इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सिनोसाइटिक हाइफे. आपको सिनोसाइटिक हाइफे पे क्वेश्चन आएगा. सो आप बस एसेप्टेड हाइफे इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफे एंड एसेप्टेड हाइफे में आपको मिलेंगे कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. सेप्टा होगा एब्सेंट. एंड देखिए सेप्टेट हाइफे में आपको सेप्टा मिलेगा. दैट्स इट.
सेप्टेड हाइफे विल हैव सेप्टा इन बिटवीन, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, दे हैव सेप्टा इन बिटवीन, दैट इज द रीजन दे आर कॉलिंग एट, वी आर कॉलिंग इट एज सेप्टेड हाइफे. बट सिनोसाइटिक हाइफे हम किसको बोलेंगे, जो एसेप्टेड होगा हम उसी को ही बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफे. नाउ न्यूट्रिशन इन फंगाई, अब हम देखेंगे, यस वी नो दैट फंगाई इज हेटेरोट्रॉफिक, बट हेटेरोट्रॉफिक में देखिए सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक. सैप्रोफाइटिक आपको पता है जो डेड से न्यूट्रिशन लेगा, जो डेड से न्यूट्रिशन लेगा हम उसको बोलेंगे, जो डेड से न्यूट्रिशन लेगा हम उसको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक, राइट. जो लिविंग से न्यूट्रिशन लेगा, जो लिविंग से न्यूट्रिशन लेगा हम उसको बोलेंगे पैरासाइटिक, राइट. सिम्बायोटिक मीन्स बोथ विल बेनिफिट, both will get benefit, बेनिफिशियल रिलेशन होगा, both will get benefit. ठीक है, ये था हमारा बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट कि अगर डेड से न्यूट्रिशन होगा सैप्रोफाइटिक, लिविंग से होगा पैरासाइटिक, देन सिम्बायोटिक, दोनों बेनिफिट होंगे. सैप्रोफाइटिक देखिए हाइफे क्या करेगा, रिलीज करेगा एंजाइम, जो डेड है उसके ऊपर एंजाइम रिलीज करेगा एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक. अब देखिए ये है हमारा डेड मटेरियल, ठीक है, यहाँ पर हाइफे ग्रो करने लग गए, हाइफे विल रिलीज सम एंजाइम, यहाँ पर कुछ एंजाइम आपको रिलीज हो जाएंगे जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएंगे, सिंपल ऑर्गेनिक. उन लोगों को यूटिलाइज करने के लिए दे विल रिक्वायर सिंपल ऑर्गेनिक, राइट. सो दिस एंजाइम विल कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक टू सिंपल ऑर्गेनिक वंस, देन दे एब्जॉर्ब इट, देन इट एब्जॉर्ब सिंपल ऑर्गेनिक वंस. उसके बाद वो लोग सिंपल ऑर्गेनिक वंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, दैट इज हाउ दे टेक न्यूट्रिशन इन सैप्रोफाइटिक. ठीक है, फर्स्ट डेड होगा, डेड पे वो लोग एंजाइम रिलीज करेंगे हाइफे, देन कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, देन सिंपल वो लोग एब्जॉर्ब कर जाएंगे. पैरासाइटिक देखिए, इट कैन बी पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको पता है कैसा पैरासाइट होंगे वो, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, दे डिपेंड ऑन होल, दैट इज डिपेंड ऑन लिविंग फॉर न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासाइटिक. देन सिम्बायोटिक देखिए, ऐसा रिलेशन है, ऐसे बेनिफिशियल रिलेशन है जहाँ पर बोथ द ऑर्गेनिज्म विल गेट बेनिफिट. सी वी विल सी symbiotic in detail here. देखिए we have two examples of symbiotic, that is lichen and mycorrhiza. So we are saying symbiotic, that is it is beneficial relationship between two organisms. तो आपको जानना है कि lichen में कौन से टू है ऑर्गेनिज्म एंड symbiotic में कौन से टू ऑर्गेनिजम्स है. देखिए lichen में आपको मिलेंगे इट इज अ symbiotic relationship, that is a mutual and बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन आल्गे एंड फंगाई. आल्गे एंड फंगाई के रिलेशनशिप को हम, सिम्बायोटिक रिलेशन को हम लाइकेन बोलेंगे. यस, फंगाई ज़्यादा होगा आल्गे से इन कंपोजिशन, बट स्टिल एक सिम्बायोटिक रिलेशन है आल्गे एंड फंगाई में. हम बोल रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स को फ़ायदा होगा. सो हम देखेंगे क्या फ़ायदा होगा, आल्गे फंगाई को क्या फ़ायदा नो करवाएगा एंड फंगाई आल्गे को क्या फ़ायदा करवाएगा. फंगाई प्रोवाइड्स वाटर, वाटर प्रोवाइड करा देगा फंगाई. देखिए फंगाई इज हेटेरोट्रॉफिक एंड आल्गे इज ऑटोट्रॉफिक. हमको पता है ना आल्गे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. देखिए आपको फंगाई हेटेरोट्रॉफिक है, दैट इज इसके फूड नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आल्गे से वो फंगाई फूड के लिए डिपेंड होगा. अब फूड के लिए तो फंगाई डिपेंड हो चुका एंड इन टर्न उसको भी तो कुछ बेनिफिट कराना है. तो देखिए फंगाई प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड शेल्टर. वाटर, मिनरल एंड शेल्टर फंगाई प्रोवाइड कर देगा. प्लीज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज नोट डाउन. आल्गे फोटोसिंथेसाइज करेगा एंड प्रोवाइड फूड टू फंगाई. तो आपको फूड मिल जाएगा, फंगाई को फूड मिल जाएगा, आल्गे को फूड, शेल्टर, सॉरी वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर मिल जाएंगे. दैट इज द रीजन वी आर सेइंग इट इज अ बेनिफिशियल एंड बेनिफिशियल symbiotic relationship in lichens between algae and fungi. Fungi providing water, minerals and shelter, algae photosynthesize करेगा and provide food fungi. कंपोजिशन में फंगाई ज़्यादा होगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट आप क्या देख चुके हो कि दे बोथ आर गेटिंग, बोथ ग्रुप्स आर गेटिंग बेनिफिशियल, राइट, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स. नाउ व्हाट इज माइकोराइजा. आपको यहाँ पर कौन से दो ग्रुप्स मिलेंगे, दैट इज इट इज अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स मीन्स जिम्नोसोम्स एंड एंजियोसोम्स, राइट. दैट इज द रीजन आई हैव रिटन हियर जिम्नो एंड एंजियो. रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगाई के बीच में एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे माइकोराइजा. माइकोराइजा में आपको फर्स्ट कौन से ग्रुप, इट इज अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगाई. अब फंगाई इट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब फंगाई इसको क्या प्रोवाइड करेगा, देखिए रूट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगाई, राइट. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फंगाई को लाइक नाइट्रोजन एंड शुगर. आप प्लीज ये हर चीज़ नोट करें, नाइट्रोजन एंड शुगर प्रोवाइड करेगा रूट्स किसको, फंगाई को. अब फंगाई प्रोवाइड करेगा वाटर एंड मिनरल्स टू, वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स में भी मेनली फॉस्फोरस. ठीक है, माइकोराइजा इज बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगाई, राइट. रूट्स विल प्रोवाइड
N2 and sugars to fungi, and fungi provide water and minerals may be phosphorus mainly to the roots of higher plants. So as we have seen in symbiotic that both the group, whether it's algae and fungi or roots of higher plants and fungi, they both are getting benefits, right? So that is the reason we are calling it as symbiotic relationship. आपको याद रखना होगा कि फंगाई ने algae को क्या प्रोवाइड किया था, algae ने फंगाई को क्या प्रोवाइड किया था, एंड माइक्रोइज्म में कितने कौन से ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट रूट्स ऑफ हायर प्लांट होंगे एंड फंगाई होगा, एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट फंगाई को क्या प्रोवाइड करेगा एंड फंगाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा. ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सी हियर आई हैव ब्रॉट सम पिक्चर्स. ये है सब आपका फंगाई. आपको पता है ये माइसीलियम टाइप है, राइट, हाइफे, देन इट इज फॉर्मिंग माइसीलियम. देखिए ये है हमारा फंगाई. दिस इज द algae, लेयर ऑफ algal, दैट इज algae and fungi. It is forming a structure that is lichen. ये है हमारा lichen, symbiotic relationship between algae and fungi. आप लोग जल्दी से मुझे बताएं, algae will provide fungi what and fungi will provide algae what. Okay, I'm waiting. Now what you can see here is these are roots of higher plant, right? And see ये देखिए ये है मशरूम इज इट इज फंगाई, राइट. आई हैव अभी हम पढ़ के आ चुके मशरूम इज फंगाई, टोटली पॉइजनस फंगाई. आप देखिए ये है फंगाई. आपको यहाँ पर से वाटर एंड मिनरल्स जाएंगे प्लांट में, देन आपको प्लांट यहाँ पर N2 एंड व्हाट वी हैव सीन नाइट्रोजन एंड शुगर्स प्रोवाइड करेगा फंगाई को. सो दिस इज माइकोराइजा, अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ओके, हैव यू पीपल गॉट इट? हैव यू पीपल गॉट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू एज मच आई कैन. देखिए रिप्रोडक्शन इन फंगाई. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप लोग देखोगे कि फ्रैगमेंटेशन, जहाँ पर बॉडी फ्रैगमेंट में पहले ब्रेक हो जाएगी, देन ईच फ्रैगमेंट विल डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल, राइट. आपको पता है बडिंग आपको मिलेगी ईस्ट, फिजन भी आपको मिलेगा ईस्ट में. देखिए मेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगाई फ्रैगमेंटेशन. लोग फ्रैगमेंटेशन बताएंगे क्योंकि मोस्ट फंगाई मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर बचा तो बस ईस्ट, एंड आपको बडिंग एंड फिजन मिलेगा ईस्ट में. बडिंग एंड फिजन दे आर स्टिक टू ईस्ट, आपको ईस्ट में मिल जाएंगे ये दोनों. बट फ्रैगमेंटेशन जो सारे मल्टी सेल्यूलर बचे हैं उसमें आपको मिल जाएगा. फ्रैगमेंटेशन इज फ्रैगमेंट हो जाएंगे, देन इट विल डेवलप एज न्यू इंडिविजुअल, राइट. बडिंग देखिए पेरेंट बॉडी पे बड डेवलप होगा एंड द बड विल आफ्टरवर्ड्स डिटैच और वो एक न्यू इंडिविजुअल के जैसा डेवलप हो जाएगा, दैट इज बडिंग इन ईस्ट. अब फिजन देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपको बाइनरी फिजन दिखेगा, राइट. बाइनरी फिजन से आप क्या करोगे, ये लोग देखिए यहाँ पर आपको बाइनरी फिजन दिख रहा है एंड दे आर डेवलपिंग एज टू डॉटर सेल्स. यहाँ पर अमीबा में है बट वी आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट. देखिए ये होगा हमारा फिजन एंड ये है हमारा बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन. बट मोस्ट कॉमन इज फ्रैगमेंटेशन बिकॉज बडिंग एंड ईस्ट दे स्टिक टू ईस्ट एंड ईस्ट इज ओनली यूनिसेल्यूलर fungi, but we have most fungi as multicellular one. So what we can see most is fragmentation, right? Okay, asexual reproduction में आपको दिखेगा कि कैसे सेक्सुअल स्पोर्स और वॉट एवर द स्पोर्स कैसे स्पोर्स फॉर्म होंगे फ्रूटिंग बॉडीज में, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जानेंगे. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है. कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो लोग करेंगे हम ये सब नेक्स्ट क्लास में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं. बट आप लोगों को इतना तो पता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, दिस एवरीथिंग विल टेक्स प्लेस. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स. फर्स्ट इफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस, देखिए अगर स्पोर्स, ये है स्पोरांजिया, दिस इज द कवर दैट इज स्पोरांजिया, दिस इज स्पोरांजिया, दिस इज स्पोरांजिया, राइट. अगर स्पोरांजिया केस में आपको स्पोर्स फॉर्म हुए, सो देन दी स्पोर्स एज दे आर फॉर्म इनसाइड द कवर they are called endospores, right. They are called endospores, they are called endospores. If the spores are formed outside the cover, if the spores are formed outside the cover, they are called exospores. So this is the basic thing. देखिए अब यहाँ पर भी देखिए स्पोर्स विथ कवर दैट इज स्पोरांजियम. इस स्पोरांजियम में क्या आपको स्पोर्स दिख रहा है, दैट इज एंडोस्पोर है. यहाँ पर देखिए स्पोर्स आर फॉर्म आउटसाइड द कवर. मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए पिक्चर लेकर आई. दैट इज आपको कवर के ऊपर स्पोर्स दिख रहा है, दैट इज एक्सोस्पोर्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, देन एंडोस्पोर प्रेजेंट विद इन द सेल. ये है स्पोर एंड ये है हमारा कवर दैट इज स्पोरांजिया. अगर स्पोरांजिया में होंगे दैट इज अंडर द इन द स्पोरांजिया स्पोर्स फॉर्म होंगे, दे आर एंडोस्पोर्स. अगर स्पोरांजिया के ऊपर फॉर्म होंगे आउटसाइड द कवर देन दे आर एक्सोस्पोर्स, ठीक है. वी हैव सीन ए सेपरेट हाइफे and endosspore, exospores
एंड सी वी हैव सीन द न्यूट्रिशंस एज वेल, क्योंकि ये सब आप लोग को आगे वर्ड्स यूज होंगे, सो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए टर्मिनोलॉजी से. सी एंड वी हैव मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स. व्हाट आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स? इफ स्पोर्स विल हैव फ्लैजेला लाइक दिस, दे आर सेट मोटाइल. मोटाइल बोलेंगे हम उसको. अगर स्पोर्स ऐसे ही होंगे, अगर उसको कोई फ्लैजेला नहीं होगा, देन वी कॉल इट एज नॉन मोटाइल. दिस इज द मोस्ट बेसिक एक्सप्लेनेशन. देखिए, अगर स्पोर्स है जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट है, देखिए मोटाइल स्पोर्स, स्पोर्स विथ फ्लैजेला, स्पोर्स एंड फ्लैजेला भी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे मोटाइल स्पोर्स, जिसको अल्टरनेटली हम जू स्पोर्स भी बोल सकते हैं. क्या है? स्पोर्स में फ्लैजेला होगा, दैट इज मोटाइल स्पोर, क्योंकि मोटिलिटी में हेल्प करेगा ना फ्लैजेला, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज मोटाइल स्पोर्स. एंड दिस मोटाइल स्पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जू स्पोर्स. नॉन मोटाइल स्पोर्स में आपको यहाँ पर कोई फ्लैजेला नहीं दिखेगा, नो फ्लैजेला, दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर्स, स्पोर्स विदाउट फ्लैजेला, ऑल्सो कॉल्ड ए प्लानोस्पोर्स. नॉन मोटाइल स्पोर्स को ही हम ए प्लानोस्पोर भी बोलेंगे. मोटाइल स्पोर को जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर को ए प्लानोस्पोर. जब आपको ये टर्मिनोलॉजीज आगे एनसीईआरटी में यूज होंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. दैट इज द रीजन वी मस्ट फर्स्ट क्लियर अप. नाउ लेट्स सी एनसीईआरटी. Kingdom fungi. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show great diversity in morphology and habitat. When your bread develops a mold or your orange rots, it is because of fungi, right? The common mushroom you eat and toadstool are also fungi. It is fungi and it is a poisonous, but they both are fungi. White spots on mustard leaves are due to, yes, parasitic fungus, that name is albugo. Some unicellular fungi, that is yeast, right? Unicellular fungi means yeast ही होगा हमारा, and yeast are used to make bread and beer, that is ethanol. Other fungi causes diseases in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some other sources of antibiotic, example penicillium, हम ये सब पढ़ चुके, right? फंगाई आप वो स्लाइड पढ़ लो, आपको सब इजी हो जाएगा. Fungi are cosmopolitan, that is they occur everywhere, occur in air, water, soil, on plants and animals. They prefer to grow in warm and humid places. अगर आप warm and humid conditions दोगे, then it form hyphae, hyphae will form mycelium, will form fruiting bodies will bear spore. So have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, we have seen, right? क्योंकि वहाँ पर cold and non-humid conditions होंगे and spores का germination नहीं होगा, and then because of that food will remain safe from fungal infection. Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. Now the last slide of the day is here. With the exception of yeast, क्योंकि देखिए सारे फंगाई मल्टी सेल्यूलर है, बट एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट, क्योंकि ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर फंगाई. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्यूलर, fungi are filamentous. The body consists of long slender thread like structure. Long slender thread like structure क्या थे ये हमारे? They were hyphae, right? They were hyphae. Then the network of hyphae is mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. ये किसको बोल रहे हो लोग? Aseptate, that is they are cenocytic. Aseptate hyphae को हम cenocytic भी कहते, right? Others have septa or cross wall in the hyphae, जिसको हम बोलते हैं septate hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. Chitin and polysaccharide. Okay, we have written carbohydrates. Please, that is some mistake. देखिए, chitin and polysaccharide. Okay, we will clear it. देखिए, chitin and polysaccharide. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence called saprophytic. अगर dead से nutrition ले रहा है, it is saprophyte. Those that depend on living plant and animal पे हो रहा है, then it is parasite. They can also live as symbionts. Symbionts में हम lichens and algae के lichens and mycorrhiza के बारे में पढ़े थे. In association, fungi in association with algae are called lichens. Then fungi in association with roots of higher plants, it is mycorrhiza. Reproduction in fungi can take place by vegetative means. Vegetative means हम देखे थे fragmentation, fission and budding. But fission and budding was strict to yeast. Yes. Then asexual reproduction is by spores. ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. दैट वी विल स्टडी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अबाउट फंगाई एंड द ग्रुप्स इन डिटेल. फर्स्ट लेट्स जस्ट क्लियर अप आवर मिस्टेक देन कि हमने यहाँ पर वेट फॉर अ व्हाइल, वेयर इज फंगाई. देखिए, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर चुका था कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिख चुका है यहाँ पर. देखिए, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड इज द आंसर. यहाँ पर प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लें. काइटिन एंड polysaccharide.
Okay. Chitin and polysaccharide is a cell wall composition of what? Yes, fungi. So with this we have completed our today's class. आप लोग जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें and I'm trying to bring more questions to you. Till then you can practice from short videos or from your materials till I bring the that question practice PQ's lecture, practice questions lecture. Okay, till then take care of yourself. Yes, indeed, why we are here. Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. Till then, take care of yourself and your family. Goodbye.